Sharma, your host, and we have explosive episode of Aim Karo. Today we got a firecracker entrepreneur, a titan, a tech titan, and the man who's turning Jaipur into the Silicon Valley East, Mr. Milan Wirtz, founder of Cyrus Infotech. Let's give it a for Milan. So, hi Milan. Hi, Ritika. So, Yeah, please. tell us something about your company. What is it is about and क्या है? So, Ritika, actually, as you told me, you that I am the founder, but I haven't considered myself still a founder. I'm an employee for my company till now. So, Cyrus Infotech Private Limited is a tech company which has started its journey from Jaipur, Rajasthan, in the year 2021. So, the basic ideology behind starting the journey is that I don't want to be an employee. But after a few months, I come to know that founder is nothing and is not like that. You are sitting on a chair and the team is working. You have to work for the organization as well. You are the employee for the organization. Then my vision get clear. By November 2021, as the company is incorporated with the Government of India, MCA, we started our services, initial services with website development, application development, and hosting services. We initially started our journey, and in the March 2022, we got our first dream project, or you can say that a journey changing project. We got a corporate training in collaboration with Pinex Technologies, and we give corporate training to Capgemini. It's a dream company for many of the BTech graduates to work there, but I have trained the students who are working there. And to be honest, I'm a BTech graduate as well, and I've started this my organization while I was in the second year. And similarly, the things works on, and by the passage of time, I come to know that the company has to be make some certain changes in itself. So, by the advancement of technology, we launched our AIML services in June 2022. After that, we are exploring the market and how we can collaborate, how to expand the business there, and how to get the things on the board. So further, I come to know that the CSR activities can play a vital role. It's corporate social responsibility. So being a private limited firm and being an entrepreneur, I switched my 10% of my entrepreneur journey towards a social entrepreneurship, and I started my own foundation, that's Space Open Foundation, which was in, which was inspired from the other mentors like Mr. Ratan Tata. So they are having all Yeah, the that's great. Yeah, of course, that's a great thing. You've got so many things, achievements, of course. You built it so much. So back in 2021, like it was the Corona period. So what was the spark that ignited Cyrus Infotech? so in the Corona period, everyone was struggling with for that how to get the job and all those things. But the thing that doesn't stop was the internet. Internet was at the boom at this time always, and the business are facing a lot of trouble that how we can engage with our customers and all those things. Then Silas come into existence. We pitch the small vendors and the shopkeepers and all those things that why are you getting worried about the things? People just create a website for you, get orders from there, and just get them delivered by yourself or something other any other medium. So initially in India market we face difficulties that people are not so tech savvy. They feel it difficult to adopt the changes and they're like मेरे साथ तो धोखा हो जाएगा कोई मेरा सामान लेके भाग जाएगा मेरा पैसा नहीं आएगा ये वो सो यहाँ के माइंडसेट के साथ थोड़ा टैकल करने में दिक्कत आ रहा था स्टार्टिंग में तो बट लेटर ऑन एक प्रोजेक्ट हुआ तो उसने दूसरे को रेफर किया तीसरे को रेफर किया तो द थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस इन इंडिया में मार्केट माउथ पब्लिसिटी ज्यादा चलती है रेदर देन आप सोशल मीडिया कर लो पीआर कर लो कुछ भी कर लो Yeah, exactly. That's so true. तो ऐसा हुआ होगा ना लाइक कोरोना के बाद आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हो मतलब ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम आई थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा बिजनेस बूस्ट भी हो रहे थे और क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों के दिमाग में आइडियाज आ रहे थे बट ऐसा भी था कि बहुत प्रॉब्लम आती है आप इतनी आप बाहर नहीं जा सकते
You can't contact people at that level. So of course that's the problem. तो आपके ऐसे सेटबैक्स क्या आते हैं जिनसे आपको सीखने को भी मिला, लाइक मेजर सेटबैक्स, और उनसे आपको सीखने को मिला, आपने उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करा, सो व्हाट वाज दैट? तो रितिका, हो क्या रहा था उस टाइम पे? अपने पास में इनिशियली स्टार्टअप होता है, उसके पास पे ऐसी टीम नहीं होती कि 100-500 लोगों की टीम पीछे बैठी हुई है और आपके पास में सब कुछ चल रहा है। तो स्टार्टिंग में जो मेजर इशू आ रहा था वो था टीम का। प्लस फंड्स का तो ऑलवेज एक स्टार्टअप के लिए हमेशा इशू रहता ही रहता है, लेकिन कहीं समहाउ मेरी कुछ सेविंग्स थी जो पिछले 1.5-2 साल से चल रही थी, तो मैंने वही कैश बर्न करना स्टार्ट किया था कोरोना में। एंड आई वाज जस्ट बर्निंग माय कैश ओवर द मार्केटिंग एंड ऑल दोस थिंग। बट टीम इज अ मेजर इशू। एंड जो सबसे बड़ा मेजर इशू आया था जब हमको कैप जेमिनी का प्रोजेक्ट तो मिल गया था, बट हमारे पास में टीम नहीं थी। हमको 15 साल का बंदे का एक्सपीरियंस चाहिए था, 15 साल एक्सपीरियंस पर्सन इन ओनली एडवांस जावा। तो उसको ढूंढने में हमको बहुत मेहनत लगा था, लेकिन हाँ, वी फाउंड समवन फ्रॉम मुंबई। एनी हाउ, वी आर जस्ट सोशल मीडिया हैंडल्स और हमको मिला वो। तो फिर दिक्कत है उसका इंटरव्यू शेड्यूल कराने में। वो इशू ये आ रहा था भाई, यार मैं तो कॉर्पोरेट में काम करता हूँ, मैं कैसे करूंगा यार, ऐसा टाइम तो मैनेज करना पड़ेगा। आपको बोले मैं 1 से 1.5 घंटा दे पाऊंगा और कैब जेमिनी वाले को चाहिए था 2 घंटे। तो वहां पे इशू आ रहे थे बहुत सारे, लेकिन हाँ, कन्विंसिंग पावर आपकी एक होनी चाहिए स्टार्टअप के अंदर। अगर आप फाउंडर हैं तो आपको कन्विंस करना आना चाहिए एनी हाउ। नहीं भी सामान बिक रहा है ना, आप उसको बेचो, कन्विंस करो सामने वाले को, वो बिकेगा। भाई शुगर कोट करना आना चाहिए लोगों को कि यार शुगर ठीक है, कोट, आप हो अच्छे, आप आपको काम करना पड़ेगा, काम निकलवाना आना चाहिए। वही आपको बस ऐसा रहना है कि साला मैं ही हूँ यहाँ पे और कोई है ही नहीं। आपको कहीं चले जाओ, आपको मेरे से अच्छी सर्विस मिलेगी ही नहीं। तो इंडिया में ये मार्केट बहुत ऐसे रहता है। हाँ ऑफ कोर्स, ये तो मतलब ऐसे नेचुरल थिंग है, नॉट अबाउट स्टार्टअप भी, कि हम अगर हमें कोई काम करवाना है लाइक इन आवर लाइफ भी, तो अगर हम लोग सामने वाले के, हाँ भाई यार आप बहुत सही हो, आप बहुत अच्छे हो, ऑफ कोर्स सामने वाला अपने आप ठीक है यार कर देते हैं हेल्प, सामने वाला इतना परेशान है, दैट्स द थिंग। दैट्स द थिंग। लेकिन आपको पता है क्या, ये सबसे बड़ा जो सेटबैक मेरे लिए आया था ना, जब स्टार्ट करा था मैंने, सो इट वाज दैट आई स्टार्टेड माय कंपनी विद वन ऑफ माय अनदर फ्रेंड मन्नू खंडेलवाल। ओके। एंड ही इज द को फाउंडर ऑफ द कंपनी। पर होता है ना कि स्टार्टअप में लोगों को लगता है कि बस गद्दी पे बैठ के अब तो पैसा अपने आप आएगा, सो वहां पे उसको काम नहीं करना था, वो नहीं करता था। तो यानी हाउ उसने जनवरी फरवरी में आके बोला, मिलन, आई एम जस्ट लीविंग द कंपनी, दैट्स इट। आई एम लाइक, व्हाट द हेल, अब मैं अकेला क्या करूंगा भाई, मैं इसको कैसे ऑपरेट करूंगा चीजों को। तो उसमें बहुत कैश बर्न खुद का चल रहा है, एनर्जी। आप अकेला बंदा फाइनेंस संभाल रहा है, अकेला बंदा टीम लीड कर रहा है, अकेला बंदा मैनेजमेंट संभाल रहा है, अकेला बंदा डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है, मार्केटिंग कर रहा है। इनिशियली इतना फंड्स नहीं होता कि आप 10 जनों को लोग मार्केट में भेज दो और उनसे फंडिंग करो, उनसे बोलो कि जाओ मार्केटिंग करके आओ। प्रेशर बहुत था, लेकिन यस, आई जस्ट मेड इट। हाँ ऑफ कोर्स यू मेड इट एंड वी ऑल कैन सी दैट ऑफ कोर्स। तो आप मतलब ऐसा होता है ना कि आप अपनी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते, ऑफ कोर्स एट दैट टाइम यू आर अ कॉलेज स्टूडेंट एंड यू हैव दैट टाइम दैट यू कैन इन्वेस्ट इन दैट, बट अभी you are doing a job startup, so all these things, how can you manage, like how do you manage all that things? स्टार्टअप वाले के लिए ना कभी रात भी नहीं होती ना कभी दिन होता, उसके लिए 24 घंटे बस काम ही काम दिखता है उसको, ठीक है। और जो बंदे कहते हैं ना कि यार रात में 9 बजे सो जाते हैं और 5 बजे उठते हैं, भाई रात के उल्लू बनो, तुम्हारे सारे काम होंगे। तो यही है कि वर्क लाइफ आपकी 10 से 6 है, उसके बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो 2 घंटे में काम करो ना जितना पॉसिबल होता है, शेड्यूल कर लो चीजें। उसके बाद 6 बजे के बाद तो आप फ्री हो। कब सारी जो बंदे हैं वो 8 बजे तक जागते हैं, 8 बजे तक कॉल कर उठाना प्रेफर करते हैं। तो 8 बजे तक कॉल करो, रात में अगले दिन का एजेंडा रेडी करो कि आप 4 घंटे में कैसे प्रोडक्टिविटी करोगे। और जैसे जैसे मौका पड़े वैसे वैसे कॉल। सबसे बेस्ट चीज है मोबाइल हैंडसेट, कॉलिंग नहीं रुकनी चाहिए, जब मौका पड़े अपने क्लाइंट्स के साथ में टच में रहो, सीधी बात। सोशल लाइफ तो नहीं होती है, मतलब आपको सिर्फ काम 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 ना ना ना, सोशल लाइफ होती है, किसने बोला सोशल लाइफ नहीं होती? सोशल लाइफ में मैनेज इवेंट्स करना होते मुश्किल होता होगा। हैं। इवेंट्स होते हैं अभी। RIC, इट्स इन मालवीय नगर, RIC में इवेंट हुआ था।
वहां पे बैठे बैठे मैंने मीटिंग्स ली है अपनी, क्योंकि एंगेजमेंट जरूरी है। जब तक आप सोशलाइज नहीं होगे तब तक आपके पास में नेटवर्क नहीं बनेगा, नेटवर्क नहीं बनेगा, बिजनेस नहीं आएगा, बिजनेस नहीं आएगा तो रेवेन्यू नहीं होगा, रेवेन्यू नहीं होगा तो आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। या ऑफ कोर्स, या मतलब बहुत बहुत एक्टिव हो जाता है, बट खुद को मैनेज करना पड़ता है। खुद टायर्डनेस हो के ऊपर जाती है, डिपेंड नो करता है डाउट्स। वो। यस, टायर्डनेस हो जाती है, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको रितिका, मेजर थिंग जो होती है ना, अगर आप अपने स्टार्टअप से प्यार करते हैं, आप कितने ही थके होंगे, अगर रात में आपका प्रोजेक्ट होगा ना कि मेरे को प्रोजेक्ट करके देना है, वो आप रात में 2 बजे भी उठ के वो प्रोजेक्ट कर रहे होंगे। और अगर आपको ये है ना कि आप स्टार्टअप नहीं, ठीक है हो जाएगा चल रहा है, इट विल नेवर गेट सक्सेस। मतलब बहुत मोटिवेटिंग लग रहा है ये सुनते हुए। मोटिवेशन नहीं, मैं खुद के इंसिडेंट्स बता रहा हूँ। मैं 2.5 साल से स्टार्टअप इंडस्ट्री में हूँ, मैं खुद के इंसिडेंट बता रहा हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। वन ऑफ माई क्लाइंट आशुतोष कश्यप, फाउंडर ऑफ वेंडरवाइज, इज लाइक, मतलब आई नीड अ वेब, ही इज ऑन द कॉल एट 9 PM। मैं रात में 8:30 9 बजे तो ऐसे होता था कि भाई प्लीज 2 3 घंटे सोने दो। इज ऑन द कॉल एट 9:30 कि मतलब ये वेबसाइट है, आई वांट इट बाय टुमारो 4 AM। आई एम लाइक यार, यार टीम तो सो रही है, अब क्या करना है, कैसे करना है। बोले आई, मेरा क्लाइंट है, तेरा भी क्लाइंट है, मेरे को नहीं पता, मेरे को 4 बजे वेबसाइट चाहिए सुबह की। रात में टीम को जगाया है, मैं खुद जागा हूँ, मेरा मैनेजमेंट में जो बंदे हैं वो जागे हैं, आशुतोष भैया खुद जागे हैं, मीटिंग चल रही है, और हमने सुबह के 3:30 बजे वो वेबसाइट लाइव करी थी, एंड द क्लाइंट वाज फ्रॉम यूएसए टू आशुतोष भैया, वो आशुतोष भैया का यूएसए का क्लाइंट था। हमने 4:30 बजे वेबसाइट लाइव करी थी इंडिया में। ओके, सो इन 2021 इट वाज अ कोरोना पीरियड, तो आपने अपनी टीम कैसे बिल्ड करी? लाइक कॉलेज में इट वाज क्वाइट इजी, आपको लोग मिल जाते हैं, आप नए लोग मिलते हैं पैशन से रिलेटेड कि आपको क्या काम करना है, बट इन द कोरोना के पीरियड ऑफ टाइम में आप लोगों से नहीं मिल रहे थे, तो आपने वो कैसे मैनेज करा? तो उस टाइम पे जो सोशल मीडिया हैंडल, लिंक्डइन हो गया, अपना फ्रीलांसर हो गया, तो वहां से हम अपना जो रिक्वायरमेंट होता था वो हम पोस्ट कर देते थे कि वी आर हायरिंग फॉर दैट जावा डेवलपर और समथिंग। हमको जो भी रिक्वायरमेंट होता था हम वो पोस्ट कर देते, तो हमारे पास रेज्यूमेज आते थे। तो जो बेस्ट रेज्यूमे होता था हम उसको हायर करते थे। हायर इज ऑन द बेसिस, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते थे कि भाई प्रोजेक्ट आएगा, हम तेरे को इतना पैसा देंगे पर प्रोजेक्ट है, तेरे को करके देना डेडलाइन के अंदर अंदर। और क्योंकि यार स्टार्टिंग में आप किसी को परमानेंट अपना नहीं बना सकते हो, उसको साला 30 40 हज़ार रुपये महीने का सैलरी देना विच विल बी वेरी डिफिकल्ट इन द स्टार्टिंग फेज। तो हम बोलते थे कि भाई सब देख, तेरे अगर प्रोजेक्ट आया 25 हज़ार का, हम देखो कुछ सर्टेन परसेंटेज दे देंगे उस प्रोजेक्ट का, एंड यू हैव टू डन द प्रोजेक्ट। तो उसमें बहुत बोलते थे कि नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और जो हाँ बोलते थे ना, वो आज भी हमारे डाटाबेस में है, और वो आज भी हमारे साथ में काम कर रहे हैं, एंड वी आर अर्निंग गुड एज अ साइड मनी। ऑफ कोर्स, मतलब अब उनको लग रहा है कि हाँ अच्छा वो उस टाइम पे हमने साथ उनके साथ रहे और अब उनको पर्क्स मिल रहे हैं। हाँ, उनको रेफरेंस मिल जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर उनको कुछ भी रिक्वायरमेंट होती है, सपोज इफ समवन इज वर्किंग इन एनी ऑफ द आईटी कंपनी, उनको रेफरेंस चाहिए होता है, तो हम दे देते हैं कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, इसको आता है। ऑफ कोर्स कि हाँ उस टाइम पे ऐसा था कि चलो ठीक है हम बहुत लो वेजेस पे काम कर रहे हैं, बट अब उनको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है यार साइड में आप अर्न कर रहे हो और रेफरेंस भी मिल जाता है, तो दैट्स अ गुड थिंग। हाँ, और आज की डेट में बीइंग अ फाउंडर और एंटरप्रेन्योर और सोशल एक्टिविस्ट, मैं ये मानता हूँ कि सिंगल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए आपका। या ऑफ कोर्स। अगर आपके पास पैसा चारों तरफ से आते रहना चाहिए, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ भी हो, वहाँ हर जगह से पैसा आना चाहिए। फॉर दैट हाउ यू कैन मैनेज योर गुड लाइफ। लाइक कोर्स अगर आपका एक जगह से पैसा आ रहा है तो आप मैनेज नहीं कर सकते अपनी लाइफ। ये तो है। और यही रीजन है कि ये आईटी कंपनी एक्सपेंशन, फाउंडेशन के थ्रू सीएसआर, सो ये सारा का सारा कहीं ना कहीं एक तरीके से अलाइंड है, पाइपलाइन में है कि कैसे क्या हो रहा है। तो हाउ डू यू मैनेज योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ? पर्सनल लाइफ, दोस्त साथ हैं तो पर्सनल लाइफ तो हो ही जाती है यार। और फैमिली फैमिली तो एनी टाइम अवेलेबल है। रात में फैमिली के साथ बैठ जाऊं, दिन भर की कहानी बताऊं उनको, मोटिवेशन देंगे कि ये गलत किया तूने, ये सही किया तूने, मोटिवेशन लो, अगले दिन की फिर से स्टार्ट कर दो। मतलब ऑफ कोर्स दैट्स द बेस्ट टाइम यू हैव, मतलब इन हाँ, होल डे। क्योंकि देखो चाहे कोई
जॉब भी कर रहा होगा या चाहे कोई स्टार्टअप भी कर रहा होगा, ठीक है, उसको ऑफिस में जाके बैठ जाएगा तो उसको फैमिली से मिलने का टाइम मोस्टली रात में 8:30 बजे के बाद ही मिलता है। 8:30 से मैं कह रहा हूँ ना आपसे, 8:30 9 बजे, 9:30 10 बजे कोई मेरे को कॉल करता है, मेरे को पसंद नहीं है। बट समहाउ क्लाइंट्स हैं तो उनके उठाने पड़ते हैं। आई टोटली सिट विद माई फैमिली। यस। या तो मैं सोना पसंद करूंगा या मैं फैमिली के साथ रहना पसंद करूँ। आपने अपने दैट्स से इट। कंपनी को ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचाया है ऑफ कोर्स, और आपने और एमएससी एमई प्रोजेक्ट्स एंड यू गॉट सो मेनी सर्टिफिकेट्स आल्सो। तो वहां पे आप हमारे एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस दोगे कि कैसे कोलैब करना, क्योंकि ऑफ कोर्स इट इज नॉट इजी टू कोलैब, मतलब आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, आप कर रहे हो, बिल्ड कर रहे हो धीरे धीरे, बट एक साल के अंदर अगर आपने से एम्पावरमेंट करा है अपनी कंपनी का, तो वो कैसे, वो उसके लिए आप क्या एडवाइस करोगे जो यंग एंटरप्रेन्योर जो भी स्टार्टअप कर रहे हैं उनको? देखो, सबसे पहले तो जो स्टार्टअप फाउंडर्स आ रहे हैं ना, जो मार्केट में अभी आ रहे हैं, पहले तो वो ध्यान से निकाल दे कि भाई हम ही राजा हैं और हम करोड़पति बन जाएंगे, रातों रात करोड़पति बन जाएंगे भाई। वो लक्ष्मी चिट फंड वाली स्कीम थी कि रातों रात पैसा डबल, वो यहाँ नहीं चलती है। यहाँ मेहनत लगेगी, कंसिस्टेंसी चाहिए, आप लोगों की डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर आप आ रहे हैं ना, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो मैं जो नए स्टार्टअप जो आएंगे और फाउंडर्स हैं उनको एक ही चीज गाइड कर सकता हूँ कि ऑलवेज गो विद द लीगल प्रोसीजर्स। लीगल प्रोसीजर्स को ही फॉलो करते हुए जाना, अदरवाइज यू विल बी इन अ बिग ग्रेट ट्रबल, ठीक है। उसके बाद में जैसे आप देखोगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफी सपोर्ट कर रही है। अभी उन्होंने स्टार्टअप इंडिया स्कीम स्टार्ट करी थी। उनका राजस्थान गवर्नमेंट का आई स्टार्ट स्कीम है, एमएसएमई है। तो देयर आर वेरियस स्कीम जहाँ पे आप टैक्स बेनिफिट्स ले सकते हो। आप उनके साथ में, उनके प्रोजेक्ट्स में आप टाई अप कर सकते हो, उनके साथ में उनके टेंडर्स होते हैं, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो यू हैव टू वेरी मच एक्टिव अबाउट दिस स्कीम्स। एंड आ रहे हो तो मेहनत तो लगेगी, सीधी बात। सोचो कि बैठे बैठे काम हो जाएगा, जो मैं स्टार्टिंग में और जो मेरे को फाउंडर सोच रहे थे कि यस बैठ जाएंगे गद्दी पे तो पैसा अपने आप आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। दूसरा, अगर आप अपने प्रोजेक्ट या जो आपकी सर्विसेज है ना, वो आप अपनी फुल एथिक्स मत भूलना कभी भी। स्टार्टअप फाउंडर जो भी आओगे या जो भी बन रहे हो अभी, सो एथिक्स मत भूलना कि यार पैसा आ गया, पैसा लेके भाग जाते हैं, अकाउंट में तो पैसा आएगा, वो क्या ही पकड़ेगा। अगर कोई पकड़ने वाला आ गया ना, तुमको घर से ले जाएगा उठा के, ठीक है। सो ये हो गया। और बाकी जो फाउंडर आ रहे हैं उनके लिए तो एक ही चीज बोलूंगा, भाई वर्क हार्ड। एंड कोई भी दिक्कत आए तो मैं तो हूँ ही यहाँ पे, आई विल हेल्प यू आउट। फर्दर जो यार, कोलैबोरेशन की बात लाइक तो, वी आर वेरी थैंकफुल कि आप, मतलब ऑफ कोर्स ऐसा कहने कि आप ऑफ कोर्स यू विल हेल्प अस एंड इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। थैंक यू सो मच। या रितिका, जैसे तुम अभी पूछ रहे थे कि आपने कोलैबोरेशन करने में बहुत इशू आता है तो कैसे क्या किया आपने। मैंने बोला कि आप सर्विसेज और क्वालिटी और एथिक्स पर रहोगे ना, कंपनी आपको सामने से पिच करेंगी। और अगर आप किसी कंपनी को खुद भी पिच करोगे ना, वो डेफिनेटली हैंड टू हैंड रेडी बैठे हुए हैं। सो one of my clients from Delhi, he was like working in Australia from last 2 to 3 years. Now he's in India. So वो बोले कि मिलन यार, मैं ऐसे ऐसे काम कर रहा हूँ, सेल्स फोर्स और क्यूए के सर्विसेज मैं देता हूँ। मैं, ठीक है, हम ये देते हैं। बोलते लेट्स कोलैबोरेट। ओके, लेट्स कोलैबोरेट। उन्होंने बोला क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी। मैं, ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आपकी क्या है। उन्होंने बोला ये मेरी है। मैं, डन। हमको, ऋतिका, यू डोंट बिलीव, हमने एक दिन के अंदर अंदर ही कोलैबोरेशन डॉक्यूमेंट सारे साइन कर दिए थे, बिकॉज हमारा म्यूचुअल बॉन्ड बहुत अच्छा था। एंड इन दिसंबर दिसंबर 2023 में हमने उनसे बात करी थी और दिसंबर 4 तक हमारा कोलैबोरेशन डन हो चुका था। तो कोलैबोरेशन डन होते ही हम ऑस्ट्रेलिया में आ गए थे। एंड ही इज लाइक मिलन, कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी टेंडर चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया के, वी विल हेल्प यू आउट। ओके। फिर उसके बाद पे इवेंट्स में जाते हैं, वहाँ पे बात होती है, आपको अलग अलग माइंड सेट के लोग मिलते हैं। तो आई वॉज वेरी एक्टिव इन दिस इवेंट्स। वहाँ पे वन ऑफ द फाउंडर फ्रॉम सिंगापुर, एंड ही इज द ब्यूरोक्रेट और सम लाइक इन द लीगल अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर। तो मिस्टर कृष्णमणि कन्नन इज द फाउंडर ऑफ पिन डॉट deliver.sg. Deliver.sg is the founder of Deliver.sg. And I connected with him on 30th of December. He said, we are planning to expand to Singapore. How you can help us? He's like, welcome, Milan. My gates are always open for you. I will definitely help you out in terms of residential problems in your
accommodation, food, travel, I will just take care of. You just come to Singapore. Okay. So that's how we are planning to expand to Singapore as well. वाह, मतलब बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है कि भाई आपके इतने अच्छे इमेज हो ना कि लोग आपको आगे से अप्रोच कर रहे हैं और रेफर कर रहे हैं कि हाँ इनको लो, ये अच्छे हैं, ये अपने एटलीस्ट इफेक्ट पे रहेंगे, आपके पैसे लेकर नहीं भागेंगे। पैसे लेके भागना नहीं होता। आप अगर वो मेरी हेल्प कर रहे हैं ना, तो समहाउ अगर उनको कहीं ना कहीं इंडिया में कुछ भी हेल्प चाहिए होगी ना, आई विल बी देयर। मेरे को जितना मेरे से होगा मैं उतनी हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। ये है। अब जैसे मैंने आपने चर्चा हो रही थी कोलैबोरेशन की, तो अभी अपना ही स्टार्टअप है कोडल वर्चुअल वेब प्राइवेट लिमिटेड, फाउंडेड बाय अमन शर्मा। ठीक है। उसके साथ में मेरा कोलैब हुआ, लेकिन कोलैबोरेशन के मैंने उससे 6 महीने बाद किया है। वो बंदा मेरे साथ रहा है, उसको मैंने परखा है, उसने मेरे को परखा है, हमारे बीच में एक बॉन्ड बना है। फिर बाद में हमने कोलैब किया कि हाँ ये बंदा कहीं नहीं जाएगा, ये बंदा साथ में रहेगा, और वो मेहनती बंदा है। तो उसकी लीगल जितनी भी थे, लीगल रिक्वायरमेंट थी, वो सारी हमने फुलफिल कराई थी। एंड उसको जहाँ पे मोटिवेशन चाहिए होता है कि मिलन भैया यार मैं यहाँ टूट गया, मैं तू कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, तू कर, तेरा भाई है तेरे साथ में। तो ऐसे ऐसे काम चलते हैं। उसका प्रॉपर साइरस इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड उसकी कंपनी में 1% की इक्विटी बियर करती है, और 5% की मैं बियर करता हूँ उसकी कंपनी में इक्विटी। तो इसी के साथ में चलती रहती हैं चीजें, सारी की सारी इक्विटी ट्रांसफर और ये सारा होता रहेगा। लेकिन जो है वो एक काम करना है, पैसे हाँ, कमाने ऑफ सीधे। कोर्स कि मतलब आपने उनको भी मोटिवेट करा है, मतलब ग्रेट थिंग कि आपने आप उनकी आपकी कंपनी उनकी कंपनी में 1% इक्विटी होल्ड करती है। सो मतलब अर्ली स्टेजेस से आपकी कंपनी ने बिल्ड तो करा है खुद को। ऑफ कोर्स 2 साल में आप लोग बहुत अच्छी स्पेस में वो करते हो, लाइक ऑफ कोर्स यू हैव नेम इन द आईटी नाउ, और लोग रेफर करते हैं कि काम करवाना है, हमने करवाया है, लोगों के पास पर्सनल एक्सपीरियंसेस है कि ठीक है। तो दैट्स द मेन थिंग, आप अपनी अपनी रेपुटेशन कैसे बना के रखते हो मार्केट में, उस पर डिपेंड करती है चीजें। अगर आपके फीडबैक अच्छे नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है। या ऑफ एग्जैक्टली कोर्स। अगर आप लोगों की नजरों में ये कि तो चोर है, ये है वो, ये कंपनी अच्छा काम नहीं करा, मेरा रिव्यूज अच्छे नहीं आ रहे ना, ना तो वो रेफरल करेंगे, ना ही क्लाइंट्स आएंगे, और एवरीथिंग इज लाइक आफ्टर एक सेचुरेशन पॉइंट होता है। या एक अपर सेचुरेशन, एक लोअर सेचुरेशन अगर टूट गया ना, तो कंपनी बंद होते में टाइम नहीं लगेगा। और एक अपर सेचुरेशन होता है सक्सेस के लिए, कि आप इस पॉइंट पे तो पहुंच गए हो, अब आप इसको तोड़ के चले गए ना, आपको कोई नहीं रोक सकता। तो अपर लिमिट वाला जो सैचुरेशन है ना, हमसे थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं, बस थोड़ा सा मेहनत और लगेगा, फिर तो बस सॉर्टेड है सब कुछ। फिर तो बस। तो आपका लाइक हेट हेट बहुत भारी शब्द होता है और बहुत ज्यादा मिलती है अर्ली स्टेजेस पे, अभी तक मिल रही होगी आपको इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ। तो उसको हैंडल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि मेंटल पीस तो जरूरी होती है, एज यू सेड यू, मतलब आपने हृदय चालू करा था इसलिए। तो वो हेट इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वो कैसे लाइक हैंडल करा आपने, क्योंकि ऑफ कोर्स लोग पता है बहुत बोलते हैं। पता है रितिका, मैं ये जिक्र हर जगह करता हूँ, और मैं इस जगह इस वाले पॉडकास्ट में भी करूंगा। मेरी लाइफ के जो बहुत ही लिमिटेड लोग हैं जिनकी चीजें मेरे को दिल पे लगती हैं, माई फैमिली, मॉम डैड एंड सिस्टर। ओके। वन ऑफ माई फ्रेंड वैभव खत्री, मैं उसका नाम खुले में बोलता हूँ, उस भाई के साथ में मेरी 10 साल की दोस्ती है। अगर वो कुछ बोलता है तब मेरे को बुरा लगता है, या अगर उसको हर्ट होता है तो मेरे को बुरा लगता है। फिर चिराग भैया, प्रतीक एंड अमन, ये 5 से 6 जने मेरी जिंदगी में जो मेरे को कुछ बोलेंगे, और कल कुछ उल्टा बोल रहे हैं, वो मेरे को दर्द देता है। अदरवाइज मेरे को फर्क नहीं पड़ता किसी की बातों से। मैं इधर से सुनता हूँ, इधर से निकाल देता हूँ, बोलता रहे। और मैं यही। आपकी फीलिंग्स समझ पा रही हूँ कि आप क्या कहना चाहते हो, कितना आपका लाइक कैसे हैंडल होता होगा वो। हाँ, यू बेटर नो रितिका कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और बाकी ये था कि ये जब जब मेरे को जब जब मेरा डाउनफॉल हुआ है ना, दुनिया वाले सामने देख के जो चाहते थे, उनको लगता था कि उनको मिल गया, कि मिलन का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, मिलन बर्बादी की राह पे जा रहा है।
उनको ये नहीं पता था कि मेरे पीछे मेरे जो बैकबोन, जो मेरे बैक पिलर्स है ना, वो इतने स्ट्रांग है कि साला मेरे को कभी डाउनफॉल होने नहीं देंगे मेरा। जब जब डाउनफॉल हुआ है दे आर लाइक, कर कर, वी आर विथ यू। यस, ये मेरे साथ रहा है हमेशा। तो आपका फर्स्ट डाउनफॉल कौन सा था आपके को फाउंडर के भागने के बाद की, ठीक है यार वो मत क्या अब, उसके बाद कि जब आपने खुद कंपनी बिल्ड कर ली थी, लेकिन उसके बाद कोई ऐसा डाउनफॉल आया हो जब ऐसा लगा हो यार क्या मैं सही तो कर रहा हूँ, छोड़ देना चाहिए मैनेज करना स्टडीज कंपनी। अभी तक जो सबसे बड़ा जो डाउट है ना अभी, वी स्टार्टेड आर एडटेक प्रोजेक्ट, इट्स एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट अंडर द नेम कोडक्राफ्ट। वो प्रोजेक्ट मेरे कंपनी, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट होता था यार। उसमें आई इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ मनी दैट, उसको ड्रॉप नहीं किया, लेकिन यार उसमें आउटपुट नहीं आ रहा था। तो वो प्रोजेक्ट चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो उसका एक तो, एक चीज तो वो हो गया, एक लॉस वो है कंपनी को जो अभी तक याद रहेगा मेरे को। उससे ना तो आउटपुट आया, लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट हो गया, लेकिन ठीक है, ओके, रखा हुआ है वो। दूसरा डाउनफॉल तब आया था जब एक क्लाइंट ने मेरे को बोला था ना, योर कंपनी इज द नाइटमेयर टू मी। एंड बात इतनी सी थी, इंडिया का क्लाइंट है, नो डाउट्स दिल के साफ भी होते हैं, और कुछ मतलब जिनको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग नहीं होती वो थोड़े थोड़े कर देते हैं इशू। तो डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग, वो क्लाइंट कंफ्यूज हो गए। एंड ही इज लाइक, मेरे पास तो लीड्स ही नहीं आ रही है। मैं सर, लीड्स इन डिजिटल मार्केटिंग, और आपने जो अडॉप्ट किया है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। नहीं बोलता, ये नहीं होता है, ऐसे नहीं होगा, ये काम नहीं चलेगा, या आप ये हैं आप वो हैं। मैं, ओके सर, व्हाट यू वांट? यू वांट, आई वांट माय रिफंड। रिफंड पॉलिसी तो होती नहीं है अपने यहाँ पे यार आज तक, तो आपको रिफंड तो कैसे दें सर? बोले आई वांट माय रिफंड, अदरवाइज मेरे लिए तो कंपनी बिल्कुल बेकार है, ये है वो। हमारे अकाउंट से पहला रिफंड गया था उस क्लाइंट को फॉर हिज सेटिस्फेक्शन। उसको ये ना लगे कि कंपनी उसका पैसा लेके भाग गई। आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको पैसे मिल जाएंगे आपके वापस। उसके बाद तो फिर हम ऐसे, हम प्रॉपर फिर तो एसओपीज पे आ गए थे कि आपने जो रिक्वायरमेंट बोली है ना, यही हम आपको दिए हैं, अब आप इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब आप बीटेक कर रहे थे तो आपके दिमाग में ऐसा क्या है कि यार मेरे को बिजनेस भी करना है, जब आप ऑब्वियसली एक डिग्री कर रहे थे और इंजीनियरिंग इज नॉट दैट बैड, तो आपके दिमाग में क्या आया कि ठीक है यार मेरे को मेरा स्टार्टअप करना है, मुझे करना है, बिल्ड करना है खुद की कंपनी। एक्चुअली इसके पीछे जो है, मैं को 11 से ही बिजनेस करना था। नो डाउट्स आई वांट टू बी अ बिजनेसमैन एनी हाउ। पर होता है ना कि अपन फैमिली के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, और कुछ होता है कि सर्टेन क्राइटेरिया आते हैं कि आपको सपोर्ट नहीं मिलता है, कुछ होता है कि आपको करनी पड़ती हैं चीजें कुछ अकॉर्डिंगली। लेकिन फिर मैं बीटेक में आ गया, 12th पास करके मैं बीटेक ले लिया, बीटेक में कंप्यूटर साइंस ले लिया। लेकिन करना बिजनेस था तो यार इट्स लाइक, ठीक है यार, क्या करें क्या करें क्या करें। आईटी कंपनी कर सकते हैं, बीटेक की डिग्री भी वैलिड है इसके लिए, और अपना आईटी स्टार्टअप तो हो ही जाएगा। सो मैं जब पूर्णिमा में आया तो मेरा विजन भी क्लियर हुआ, एक जना मनु मिला, मैं करते हैं, ठीक है। इसके पीछे भी एक बहुत फनी इवेंट है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता है, पर हाँ, वन ऑफ एक सेमिनार चल रहा था पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में ही। वन ऑफ द रेप्यूटेड टीचर फ्रॉम पीयू वाज कंडक्टिंग दैट इवेंट, एंड ही इज लाइक, किसको नौकरी करनी है वो हाथ ऊपर करे, किसको जॉब नहीं करते वो हाथ ऊपर करे। सो एवरीवन इज लाइक, जॉब करनी है, मैं। दो चार थे जिसको नहीं करनी, तो जिसको पापा का बिजनेस संभाला था, एंड आई वाज लाइक सर, मैं को जिसको स्टार्टअप करना है वो क्या करे। मैं रैंडमली क्वेश्चन, क्या करेगा वो? टीचर का रिप्लाई आता है, क्या करेगा? सर क्या करेगा मतलब, चाय की ठड़ी लगाएगा, चाय बेचेगा, रेड़ी लगाएगा। मैं यार, मैं सर ये तो नहीं करूंगा एटलीस्ट, फिर क्या करेगा? एंड बात बहुत बुरी लगी, जब 250 बच्चों के बीच में कोई आपके ऐसे कर देना तो बहुत ऑफ बुरी बात कोर्स। लगती है। मैं ऐसे था कि ठीक है सर, मैंने फिर बोला कि सर कैन आई हैव योर कॉन्टैक्ट नंबर? तो सब हंसने लग गए। मैं देख रहा हूँ इनको हंसी क्यों आ रही है भाई, बच्चों को हंसी क्यों आ रही है, तो उन्होंने अपना नंबर तो दिया। सो मैं ठीक था, मैं एक मोटिवेशन तो ये मिल गया कि चाय की थड़ी तो नहीं लगा रहा हूँ एटलीस्ट,
but it is a good startup. MP चाय वाला is doing good in this चाय field as well. Yeah. पर है ना, तो चाय की थड़ी तो नहीं लगा रहा एटलीस्ट। तो मेरा एक मोटिवेशन तो ये था, माइंडसेट था कि स्टार्टअप करना है। एक बारी के लिए बैग संभालने के लिए मनु भी था उस टाइम पे कि हाँ ठीक है करते हैं। आई कनेक्टेड विद द सीए, सारा काम हुआ, आई गेट द रजिस्ट्रेशन डन, सब कुछ हुआ, सारे डॉक्यूमेंट साथ में, एंड आई वाज ऑन द 14th डे, 14th और 15th डे उस इवेंट के बाद में, आई वाज इन द कैबिन ऑफ द टीचर एंड सर दीज आर द कंपनीज डॉक्यूमेंट। तूने कर लिया, मेरे को लगा नहीं था तू करेगा, ये वो हा हा हा। मैं सर, कभी कभी आप दूसरे की कैपेसिटी को नहीं जानते हो, एंड आप किसी को ऐसे क्रिटिसाइज ना किया करो। मैं उनको ये बोल के वहां से आ गया, और बहुत चीज आज तक सबको मैं बताता हूँ, जितने भी इवेंट्स होते हैं ना, सबको मैं बताता हूँ कि भाई अगर क्रिटिसिज्म मिल रहा है ना, उस क्रिटिसिज्म को तुम रॉन्ग प्रूफ करके अपने आप को सही कर दो, और एक बी अ शाइनिंग स्टार। सब आपको, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया आपने इसको। हाँ, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लो, और ऐसा नहीं कि आप उस क्रिटिसिज्म को लेके बैठे रहो, कुछ नहीं मिलेगा। तो अब अपन है ना एक रैपिड फायर राउंड करेंगे, उसमें आपको आंसर्स देंगे, ओके? परफेक्ट। हाँ, ओके। सो इफ यू कुड have any tech superpower, what would it be and how would you use it to your business? टेक सुपर पावर, Yes. भाई मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहूंगा यार। बिकॉज एक क्लिक के अंदर मेरे को सारे ऑल ओवर द ग्लोब का डाटा मिल जाएगा, सारी कंपनीज का डाटा मिल जाएगा, एंड आई कैन इजीली पिच देम। और भैया मेरे को तो लीड्स मिल गई वहां से, सीधी बात। आई वांट टू बी अ एआई स्पेशलिस्ट, अगर मेरे को सुपर पावर मिले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नो डाउट्स। How do you, मतलब अगर आपको अपनी कंपनी को कोई डेडिकेट करना है कि ठीक है, पावर्स इन माय कंपनी, तो वो कौन सा एनिमल होगा? लायन, ओके, मेरे को लग रहा था यही आंसर आएगा। चिंपैंजी, लायन, लायन, चिंपैंजी, and so to some extent weaving bird. It's weaving bird. तो आप हमारे नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको क्या एडवाइस दोगे एट लास्ट, कि उनको क्या करनी चाहिए? स्टार्टअप जर्नी में आ रहे हो, लीगल प्रोसीजर फॉलो कर लेना, डेडिकेशन रखना, हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखना, और हमेशा फोकस रखना कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज को जरूर एक्सप्लोर करो। और इफ यू नीड एनी हेल्प, me here and the team aim karo is also here to help you guys. Yes, we of course, for those guys who want help. Of course, we are also like new in this market, so we are also learning. तो आपकी ऐसे अपने टीम, अपने कंपनी को लेकर आपका विजन क्या है 5 years में, कि वो कंपनी कहाँ होगी? यार 2 साल में सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, तो मेन मोटिव तो यूएसए का है, तो यूएसए पहुंच जाने चाहिए तब तक तो। ओके, ग्रेट। इंटरनेशनल करेंसी अकाउंट्स में आनी चाहिए यार। आनी ऑफ कोर्स आनी चाहिए। What is the crazy? Who is the craziest client you have ever received? You got. That client who told me that Milan, your company is a nightmare, is one of the craziest client from Mumbai, and I will never forget my this business journey. ओके, मतलब ठीक है, आपके पास बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं दैट इज एक्चुअली फनी, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग, एंड यू कैन लर्न फ्रॉम दैट ऑल द सेम टाइम, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Yeah, ऋतिक, मेरी लाइफ में जितने भी इंसिडेंट्स हुए बिजनेस लाइफ में, कुछ ना कुछ तो सिखाया है। इतना तो रात में बैठ के मतलब कभी कभी इंसिडेंट याद में आ जाते हैं, सोते सोते भी तो हंसी निकल जाती है कि यार ये क्या किया था और उसको कैसे सॉल्व किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिलन फॉर ज्वाइनिंग अस, इट वाज ग्रेट टाइम, एंड थैंक यू फॉर सो मोटिवेशनल थिंग्स यू आपने बताई, हमने सीखी। थैंक यू सो मच। इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू meet with you guys and have a communication with you guys. Thank you so much.